बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स एफएससी एंड आईसीएस पार्ट 1 की सीरीज जारी है। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 7 to 12 हल करेंगे। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनके हमें स्क्वायर रूट एवेल्युएट करने हैं। तो पार्ट 1 करेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट को नीचे लिख लेंगे। z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। लेट दिस इज z। x is equal to -7 and y is equal to -24। z mod निकालेंगे। z mod is equal to -7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर स्क्वायर रूट। फार्मूला ऑफ z जो है ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें x -7 है और y -24। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। z mod इज इक्वल टू -7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 स्क्वायर इज 576। 49 और 576 को कैलकुलेट कर लेंगे। ये आएगा 625 और कैलकुलेटर के ऊपर ही मालूम कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ z mod। द फार्मूला ऑफ square root of z is equal to plus minus bracket z mod plus x divided by 2 square root plus iota into y by y mod square root of z mod minus x divided by 2। This is the formula for the square root of any complex number। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z mod is 25 plus value of x is -7 whole divided by 2 square root plus iota। Value of y is -24। y mod हो जाएगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 24। z mod 25 minus value of x is -7 minus plus 7 divided by 2 bracket closes। z square root is equal to plus minus 25 minus 7 is 18 by 2 square root plus iota। 25 cancels 24 cancels 24, it will become -1। 25 plus 7 is 32 divided by 2 square root। कैलकुलेशंस में जहां भी आप डिफिकल्टी समझें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस 18 by 2 इज 9 स्क्वायर रूट। ये वाला माइनस बाहर आएगा। माइनस एयोटा 32 by 2 इज 16 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोजेस। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट इज 3 माइनस एयोटा 16 स्क्वायर रूट इज 4।
These are two values of z square root. One of the value is 3 minus iota 4 and the other value is minus 3 plus iota 4. जब इधर से पॉजिटिव लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस आयोटा 4 और जब इधर से नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये आएगा -3 और ये वाला साइन प्लस हो जाएगा. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ z स्क्वायर रूट. Part 2 of the question is 8 minus 6 iota. Let this is equal to z. Z is equal to 8 minus 6 iota. Here x is equal to 8 and y is equal to -6. Z mod is equal to 8 square plus -6 squares whole square root. Z mod is equal to 8 square, we know that is 64 and -6 square is 36. Square root 64 plus 36 is equal to 100 and square root of 100 is 10. This is the value of z mod. Formula of z square root is equal to z square root equal bracket z mod plus x divided by 2 square root plus iota y by y mod z mod minus x divided by 2 square root bracket closes. Z mod is equal to z square root is equal to z square root 10 plus iota plus x is 8 divided by 2 plus iota y minus 6 mod of y 6 z mod 10 minus x minus 8 divided by 2 square root bracket closes. Z square root is equal to 10 plus 8 18 by 2 square root 6 cancels 6 ये आएगा iota into -1 10 minus 8 is 2 divided by 2 square root bracket closes. Z square root is equal to 18 by 2 is 9 9 square root ये माइनस बाहर आएगा माइनस आयोटा इसके साथ सब स्टेप्स में प्लस माइनस भी लिख लें क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें प्लस माइनस आता है. 2 by 2 it will become 1 square root and we know that the square root of 1 is 1. Z square root is equal to plus minus 9 square root is 3 minus iota 1 square root is 1 and when it will multiply with iota it will become iota. These are the two values of square root, Z square root. One of the value is 3 minus iota and the other value is minus 3 plus iota. Part 3 of the question is -15 minus 36 iota. Let this is equal to z. Let z is equal to -15 minus 36 iota, x is equal to -15 and y is equal to -36. Z mod is equal to
square of real value minus 15 square plus square of imaginary value is minus 36 और इसका square whole square root. Z mod is equal to minus 15 square कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर लें इसको, ये आएगा 226 प्लस कैलकुलेटर के ऊपर ही 36 स्क्वायर करें, ये होगा 1296. नेगेटिव साइन स्क्वायर में खत्म हो जाते हैं, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, ये आएगा हमारे पास 1521 स्क्वायर रूट और कैलकुलेटर के ऊपर ही कैलकुलेट कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज इक्वल टू 39 वैल्यू ऑफ Z mod. Now the formula of Z square is equal to plus minus bracket Z mod plus X divided by 2 whole square root plus iota Y by Y mod square root of Z mod minus X divided by 2 bracket closes. वैल्यूज पुट करें इसमें, जिसके रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस Z mod is 39 plus X value of X is minus 15 divided by 2 plus iota value of Y minus 36 mod of Y its positive value 36 square root of Z mod 39 minus value of X is minus 15 minus minus plus 15 divided by 2 bracket closes. Z square root is equal to plus minus bracket 39 minus 15 is 24 divided by 2 square root 36 cancels 36, it will become minus 1 and 39 plus 15 is 54 by 2 square root. फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको, Z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट 24 by 2 is equal to 12, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस आयोटा 54 by 2 is 27 स्क्वायर रूट. फर्दर इन्हें इस तरह सॉल्व करेंगे, 12 is equal to 4 into 3, 4 3s are 12, स्प्लिट कर लेंगे इसको, इसका स्क्वायर रूट इक्वल होगा इसके स्क्वायर रूट के और ये इक्वल होगा 4 स्क्वायर रूट होगा 2 और 3 स्क्वायर रूट साथ में इसी तरह आएगा. इसी तरह 27 is equal to 9 into 3, 9 3s are 27, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड पे, इक्वल आएगा 9 स्क्वायर रूट आएगा 3 और 3 स्क्वायर रूट इसी तरह. ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 12 स्क्वायर रूट की और 27 स्क्वायर रूट की. सो Z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 into 3 square root minus iota 3 into 3 square root. Again, these are two values of Z square root. One of the value is 2, 3 square root minus iota 3 into 3 square root. This is one value. The other value is with negative sign. जब नेगेटिव साइन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 3 into 3 square root. Part 4 of the question is
we have to evaluate the square root of 119 plus 120 iota. Let this is equal to z. Z is equal to 119 plus 120 iota. In this case, x is equal to 119 and y is equal to 120. Z mod निकाल लेंगे. Formula of z mod is equal to the square of the real value 119 square plus square of the imaginary value 120 square root. Z mod is equal to 119 स्क्वायर कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे, ये हमारे पास आएगा 14161 प्लस 120 स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, ये आएगा 14400 स्क्वायर रूट. कैलकुलेटर के ऊपर ही इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28561. Again, using calculator, we will find that the square root of 28561 is equal to 169. Now let's write down the formula of z square root. Z square root is equal to plus minus z mod plus x divided by 2 square root plus iota y by y mod z mod minus x divided by 2 square root and bracket closes. Z square root is equal to plus minus value of z mod 169 plus value of x 119 divided by 2 square root plus iota value of y 120, value of y mod will also be 120. Z mod is 169 minus 119 divided by 2 square root. Bracket closes. Z square root is equal to plus minus bracket 169 प्लस 119 कैलकुलेटर यूज करेंगे, ये हमारे पास आएगा 288 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस 120 कैंसल्स 120 169 माइनस 119 कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो ये आएगा 50/2 स्क्वायर रूट और इसके साथ आयोटा भी है और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. Z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 288/2 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर रूट प्लस 50/2 इज 25 iota 25 square root. Z square root is equal to plus minus 144 square root is equal to 12 plus iota 25 square root is equal to 5. Again, these are the two values of z square root. One of the value is 12 plus 5 iota and the other value is minus 12 minus 5 iota. This is the question number 7. लास्ट पार्ट था इसका, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ जी. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 minus 20 into 3 square root iota
and represent it on an Argand diagram. हमने इसको आर्गेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. द ग्राफ ऑफ द complex numbers is called Argand diagram. In this case, the given number is 13 minus 20 into 3 square root iota. Let this is z. Z is equal to 13 minus 23 square root into iota. इसमें x इक्वल होगा 13 और y इक्वल होगा -20 इंटू 3 स्क्वायर रूट. जी माड निकालेंगे. जी माड इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी वैल्यू -20 इंटू 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट. 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट को सेपरेट सॉल्व कर लेंगे. इधर 23 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 20 इज 400. स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो है ये होगा 3. इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे. 403 इज इक्वल टू 1200. इधर पुट कर लेंगे इसको. जी माड इज इक्वल टू 13 स्क्वायर कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे 169 प्लस इसमें माइनस साइन जो है वो खत्म हो जाएगा. 23 स्क्वायर रूट को साइड पे हमने कैलकुलेट कर लिया है. डेट इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर रूट. इसका स्क्वायर रूट कर लें जी. नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करें. ये आएगा 1369 स्क्वायर रूट. 1369 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 37. अब जी स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखेंगे. वी नो डेट जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट बिगिंस जी mod प्लस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y बाई y mod स्क्वायर रूट ऑफ z mod minus x divided by 2. Further it can be written as z square root is equal to plus minus bracket begins z mod is 37 plus x is 13 divided by 2 whole square root plus iota value of y minus 20 into 3 square root. Value of y mod 20 into 3 square root. Square root z mod 37 minus x minus 13 divided by 2 bracket closes. Z square root is equal to plus minus 37 plus 13 is 50 divided by 2 square root. ये कटा इसके साथ प्लस आयोटा -1. 37 minus 12 will become 24 divided by 2 square root. Z square root is equal to plus minus 50 by 2 is equal to 25 square root. ये माइनस बाहर आएगा. माइनस आयोटा 24 by 2 is 12 square root. फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे. z square root
is equal to plus minus square root of 25 is 5 minus iota 12 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर ये हमारे पास आएगा 3.46 की करेंगे राउंडिंग। ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, ये वाला नंबर जो है ये एक इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी राउंडिंग जो है ये कुछ इस तरह हो जाएगी 3.5। 3.46 is approximately equal to 3.5, so z square root is equal to plus minus 5 minus iota 3.5। ये दो नंबर हैं दोबारा से। वन ऑफ द नंबर z square root is equal to 5 minus iota 3.5 and the other number is minus 5 plus iota 3.5. Now we have to represent these two numbers on the Argand diagram. Argand diagram पे represent करने के लिए हम Argand diagram ले लेंगे, along x axis लेंगे रियल एक्सिस और along y axis लेंगे इमेजिनरी एक्सिस। मतलब कि रियल वैल्यूज को इसके along रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी वैल्यूज को इसके along रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हमने किसी वैल्यू का ग्राफ बनाना होता है तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं स्केल। इसमें हम स्केल सिलेक्ट कर लेंगे। लेट 1 इज इक्वल टू 2 स्मॉल डिवीजन्स। ये जो एक छोटा डिब्बा है इट इज कॉल्ड 1 स्मॉल डिवीजन एंड 2 स्मॉल डिवीजन्स आर इक्वल टू 1। 5 is equal to, if 1 is equal to 2 small divisions, 5 is equal to 10 small divisions and 3.5 are equal to 7 small divisions। 3.5 होगा 7 स्मॉल डिवीजन्स और जहाँ पे हमने माइनस 3.5 लेना होगा वहां पे माइनस 7 डिवीजन्स आ जाएगा। तो ये वाला स्केल यूज करते हुए जी हम इधर निशान लगा लेंगे। 2 स्मॉल डिवीजन्स को रखेंगे इक्वल टू 1, ये हुआ 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। इसी तरह अपोजिट साइड पे माइनस वैल्यूज -1, -2, -3, -4, -5 और इमेजिनरी वैल्यूज जो हैं वो अलोंग दिस एक्सिस होंगी। 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4 and in between 3 and 4 is 3.5. Similarly on the negative imaginary axis -1, -2, -3 and this is -3.5। तो ड्रा करते हैं इसको 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 5, ये रियल वैल्यू आ गई थी। इमेजिनरी वैल्यू है यहाँ पे -3.5। -3.5 मीन के माइनस साइड पे इस तरफ जिधर को हमने बाहर 3.5 लिखा हुआ है उसके सामने 3.5 का निशान लगा लें। ये हमारा आएगा जी 0.5 एंड -3.5 एंड -3.5 आयोटा। ये काम इसमें नहीं आएगा। दूसरी वैल्यू जी -5 एंड 3.5 प्लस। -5 इस साइड और 3.5 ऊपर को। -5 के ऊपर और 3.5 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया जी हमारा। ये वाला पॉइंट होगा -5 एंड 3.5 इंटू आयोटा। ये आर्गेन डायग्राम के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया जी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9 is find the real values of x and y if minus 7 plus iota x plus iota y plus minus 1 minus 5 iota is equal to iota into 11 minus iota। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट को नीचे लिख लें। -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस -1 माइनस 5 आयोटा इक्वल आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट दैट इज -7x माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 1 है और ये y है, ये आएगा -y प्लस आयोटा। रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट -7y, इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट प्लस x। इसकी ब्रैकेट खोल दें, ये आएगा हमारे पास -1 माइनस 5 आयोटा इक्वल राइट हैंड साइड पे आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दोबारा से इस साइड पे आ जाएंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड पे इधर रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। रियल वैल्यूज हैं -7x माइनस y और एक ये वाला 1 जो है ये रियल है -1 प्लस बकाया में से आयोटा कॉमन कर लें जी। इमेजिनरी वैल्यूज में से आयोटा करें कॉमन, इसमें x को पहले लिख लें x माइनस 7y, इसमें से आयोटा कॉमन करेंगे तो ये आएगा -5 इक्वल ये आएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, ये रियल वैल्यू बन गई, इसको हम पहले लिख लेंगे 1 प्लस 11 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts. Real part on left hand side is -7x minus y minus 1 and the real part on right hand side is equal to 1. Imaginary part on the left hand side is x minus 7y minus 5 equal imaginary part on right hand side is 11. अगर इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इस 1 को दूसरी साइड शिफ्ट करें, ये आएगा -7x माइनस y इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके ऐड होगा तो ये बना 2। इसी तरह इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 5 को उस साइड ले जाएं, ये बना x माइनस 7y, y उधर जाके होगा ऐड तो ये 11 प्लस 5 आएगा 16। इसका नाम रखें इक्वेशन 1 एंड नेम दिस वन इक्वेशन एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाए, किसी एक के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लें। हम इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं विद 7 और इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के नीचे -49x माइनस 7y इज इक्वल टू 14। 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से ही आएगा जी, 7 7 और 49 माइनस 7 इंटू वाई इज -7y, 7 2 14। इसे लिखेंगे बिलो
इक्वेशन नंबर 2 -49x - 7y इज इक्वल टू 14। y को कैंसिल करने के लिए इसके साइन चेंज कर देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो -7y कटा +7y के साथ x + 49x इज 50x, 50x इज इक्वल टू 2। 50 पे दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, x इक्वल आ जाएगा 2/50। 2/50 को फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 2 पे कट जाएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 25। x इज इक्वल टू 1/25। x की ये वैल्यू किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल लें। किस इक्वेशन में पुट करें? ये इक्वेशन 1 में पुट कर लें आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 -7 into x -7x is 1/25 minus y इक्वल टू -7 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये बना -7/25 माइनस y इक्वल टू 2। -7/25 को दूसरी साइड ले जाएंगे, -y इक्वल आएगा 2, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, +7/25 -y इन दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा 25, 25 मल्टीप्लाई करेगा 2 को, ये बना 50 + 7 इसी तरह आएगा 57/25 वैल्यू ऑफ -y। माइनस को उधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू -57/25। These are the values of x and y. Value of x is 1/25 and value of y is -57/25. Next question is question number 10. Question number 10 is find the real values of x and y if स्टेटमेंट को नीचे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टेटमेंट इज 5 - 2 iota multiplied by x plus iota y plus 3 equal iota into 11 minus iota minus 4 iota। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दें इनको। 5 into x, 5x रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, माइनस इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, -2 into y, ये बना -2y, तो ये प्लस हो जाएगा 2y प्लस आयोटा, रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट y, तो ये बना 5y। Imaginary part into real part, -2 and x, -2x। ये 3 जो है इसे अदर साइड ले जाएं और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे इधर आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बना 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, ये 3 जो है ये इस साइड आके -3 हो जाएगा। 5x plus 2y plus iota into 5y minus 2x is equal to, इस साइड देखें 11 iota minus 4 iota, it will become 7 iota। और ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर है ये बनेगा +1, तो ये आ गया हमारे पास +1
-3। नेक्स्ट स्टेप में ये सारी वैल्यू इसी तरह लिखी जाएगी 5x + 2y, बल्कि इस तरह करें कि इसमें इसको थोड़ा अरेंज कर लें, x वाली वैल्यू को पहले लिख लें, y वाली वैल्यू को बाद में लिखें। -2x + 5y इक्वल 1 - 3 - 2, इसको पहले लिख लेंगे, रियल पार्ट है, और 7 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इसको बाद में लिखेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये आप खुद लिखेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने लगा हूँ। 5x + 2y इज इक्वल टू -2 एंड -2x + 5y is equal to 7. This is equation 1 and this one is equation 2. इनको नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लें। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, मल्टीप्लाइड विद 2, it will become 10x + 4y equal -4। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 5, ये बनेगा हमारे पास -10x + 25y इक्वल 7 × 5 = 35। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंडर लिख लें। 10x + 4y इक्वल -4, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमारे पास आएगा -10x + 10x के साथ कट जाएगा 24, 25 + 4, ये आएगा हमारे पास 29y। राइट हैंड साइड पे आएगा 35 - 4 31। So the value of y will become 29 उस साइड जाके डिवाइड करेगा 31/29, this is the value of y. Putting this value of y in equation 1, we will get 5x + 2 into 31/29 इक्वल -2। फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको। 5x 2 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 62 / 29 इक्वल -2। 62/29 को अदर साइड ले जाएंगे, 5x इक्वल आ जाएगा -2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -62/29। 5x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 29, 29 multiplied by 2 is -58 and this one -62 will remain as it is. So 5x is equal to -58 - 62, दोनों माइनस की टर्म्स हैं, प्लस होंगी, साथ साइन नेगेटिव आएगा, दोनों प्लस होके ये बना 120 / 29। दोनों साइड 5 पे डिवाइड करेंगे, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x इक्वल -120 को 5 पे डिवाइड करेंगे, साइड पे कर लें 120 / 5, तो ये बना 5 2s are 10, 5 4s are 20, -24/29. This was the question number 10. The next question is question number 11. Let's move to the question number 11. Statement of question number 11 is find the real values of u and v if
u minus 2 divided by 2 plus iota plus v minus 3 divided by 2 minus iota is equal to 4 iota। स्टेटमेंट को नीचे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टेटमेंट इज u minus 2 divided by 2 plus iota plus v minus 3 divided by 2 minus iota is equal to 4 iota। लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स हैं इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम बनेगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा। ये वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेगी u माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा प्लस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी v माइनस 3 को। v माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आयोटा इक्वल 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करें जी इनको। 2 इंटू यू इज 2u माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4 माइनस आयोटा इंटू यू इज माइनस आयोटा यू माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 2v माइनस 6 दोनों को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा इंटू वी माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखेंगे दो सेम वैल्यूज हैं विद अपोजिट साइंस इन बिटवीन देम, तो ये होगा स्केयर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्केयर ऑफ द सेकंड टर्म दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। ऊपर रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लें 2u प्लस 2v माइनस 4 और माइनस 6 ये बना माइनस 10। दीज आर द रियल वैल्यूज। और बकाया वैल्यूज में से आयोटा कॉमन कर लें जी। आयोटा वाली वैल्यूज हैं माइनस आयोटा, ये वैल्यू है u, ये वाली वैल्यू है आयोटा v, आयोटा कॉमन माइनस आयोटा कॉमन तो ये बना माइनस 2 सॉरी माइनस v। ये है माइनस 3 आयोटा और ये है प्लस 2 आयोटा, ये बना माइनस आयोटा, माइनस चला गया कॉमन तो ये बन गया प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 स्केयर 4 आयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 4 आयोटा। ऊपर सारी टर्म इसी तरह लिखी जाएगी 2u प्लस 2v माइनस 10 माइनस आयोटा इंटू u माइनस v प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आएगा 4 प्लस 1 5 इक्वल 4 आयोटा। डिनोमिनेटर वाला 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये बना हमारे पास 2u प्लस 2v माइनस 10 माइनस आयोटा इंटू u माइनस v प्लस 1 इक्वल टू 5 4s are 20 आयोटा। इसमें देखें कि ये जो है 20 आयोटा इसमें रियल पार्ट नहीं है, मीन के इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है तो इधर हम 0 लिख लेंगे 0 प्लस 20 आयोटा। तो कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इस साइड पे रियल पार्ट है 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल 0
और इमेजिनरी पार्ट है इस साइड पे माइनस u माइनस v प्लस 1 इक्वल राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 20। इनमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें। 2 इंटू यू प्लस वी माइनस 5 इक्वल 0। 2 साइड जाके 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही आ जाएगा। फर्दर ये टर्म हमारे पास बन जाएगी u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और u प्लस वी इज इक्वल टू 5। पुट इट एज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में माइनस साइन उधर ले जाएं। u माइनस वी प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 20। ये 1 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो u माइनस वी आएगा माइनस 20 माइनस 1 माइनस 21। पुट इट एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के अंडर लिखें। इक्वेशन 1 इज u प्लस v इक्वल 5। दोनों को ऐड कर दें। माइनस v प्लस v के साथ कट जाएगा। 2u इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 5 इज माइनस 16। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 u is equal to minus 8. Putting value of u in equation 1, from equation 1 minus 8 plus v is equal to 5. ये 8 साइड जाके प्लस होगा। v is equal to 5 plus 8 is 13. These are the real values of u and v. The next question is last question of today's lecture, and that is if z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, find the real values of alpha such that z1 z2 is equal to 20. Solution. We are given z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, and at the same time it is also given real part of z1 z2 is equal to 20. तो इसमें हम पहले z1 z2 कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका रियल पार्ट ले लेंगे और उसको इक्वल करेंगे 20 की, तो हमारे पास आंसर आएगा। तो पहले कैलकुलेट करेंगे हम z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 मीन 4 plus 5 iota is multiplied with alpha minus 2 iota. Real part into real part, that will become 4 alpha minus imaginary part into imaginary part. 5 minus 2s are minus 10, तो ये plus 10 हो जाएगा। plus 10 plus iota, real part into imaginary part, 4 minus 2 is minus 8 plus imaginary part into real part, 5 into alpha is 5 alpha. This is the product of z1 z2. This is the real part of z1 z2 and this is the imaginary part of z1 z2. We have to consider only its real part. Real part of z1 z2 is equal to 4 alpha plus 10, and given that is real z1 z2 here. Real z1 z2 is equal to 20. 20 is equal to 4 alpha plus 10. इस साइड आके मल्टीपल माइनस होगा। 4 alpha is equal to 20 minus 10, it is equal to 10. Dividing both sides by 4, we will get alpha is equal to 10 by 4. ये दोनों
2 पे कट जाएंगे, 5 2s are 10 and 2 2s are 4. So alpha is equal to 5/2. This is all about today's lecture. अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना बलागुल मुबीन।